Hi, good evening, everyone. Welcome to Selection IAS. Good evening. Okay, you see. Good Please, evening, sir. good evening, Alekhya. Good to see you. So we have Alekhya, Ayushi, Gargi, Kajal, Deepa. Okay, where are other people? So we have 6:30 class every day, guys. Okay, try to be on time. As I told you, every single minute is very precious. Okay, yeah. So let the other people join. And meanwhile, I would like to talk upon the targets. Right, today I provided you the day one target of the 45 days mastery program. Okay, so it's huge, right? So for many of you guys, it's really huge. Okay, I mean, it's around 45 classes per day. All right, you must have your own study plan. Okay, you must have your own daily targets, right? I do understand. And some of you are actually working professionals, so they are not going to do justice with that target. That is also I do understand. Okay, so this is something when you are planning to qualify UPSC prelims examination, which is the biggest examination of this country, to choose the best minds of the country to run the administration, right, to run the governance, right, everybody, then definitely there must be some cost for it. Okay, so if you want to rise, then definitely you have to pay the price. Okay, so it's around when we have 60 days left, and the program is for the 45 days. Okay, of course after that there will be mentorship session, doubt session will be there, but the target from my side would be 45 days. Okay, including the revision part. Okay, so definitely, so covering 45 classes, solving MCQs, going through the mapping section, it will take around 5 to 6 hours, maybe 7 hours to some students also. Okay, so लास्ट 60 डेज में अगर आप मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्टडी नहीं करोगे तो कब करोगे? पूरे साल तो आपने करा नहीं. गॉट इट? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एंड दिस इज द मार्च. मार्च इज आल्सो गोइंग टू बी फिनिश इन 5 days, राइट? वी हैव अप्रैल. गॉट इट? सो लास्ट 60 डेज में हमारी परफॉर्मेंस, हमारी प्रिपरेशन ऑप्टिमम लेवल पर होनी चाहिए. गॉट इट? ऑप्टिमम लेवल एवरीबॉडी. गॉट इट? ऐसी मेहनत करो जैसी मेहनत आपने आज तक नहीं करी है. गॉट इट? उस लेवल पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी. गॉट इट? इट्स लाइक कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, ओके, that you have not as of now, then you have to do something that you haven't done as of now. Got it? अगर आप किसी ऐसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो जो आज तक आपको अचीव नहीं हुआ है, तब आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो आज तक आपने नहीं किया. दिस इज एज सिंपल एज दैट. सो टारगेट्स देखने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है. आप टाइम लीजिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लास से पहले सारे हो जाएंगे. कल से आपको मॉर्निंग में क्लासेस मिल जाएंगी, बिकॉज अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड 3 बैचेस. ओके, ऑल टुगेदर. सो थोड़ा सा टाइमिंग का मैनेजमेंट हमें देखना था, तो आई वाज बिजी इन दैट थिंग, राइट? So now everything has been scheduled, and from tomorrow onwards, you will be getting your daily targets in the early morning, maybe night only. Got it? So you take your time. You have full day, okay, and you have to devote 6 to 8 hours every single day. अगर आप अभी 8 घंटे भी नहीं पढ़ोगे लास्ट के 60 डेज में, तो nobody can help you guys. Nobody can help you. Do you understand it? या इसकी तैयारी कोई मजाक नहीं है. Okay, yes. So people in library, they are burning the midnight oil by working for the 14 hours a day, 16 hours a day. I'm not saying कि आपको भी 16 hours करने चाहिए. आज के टाइम पे यूपीएससी की जो पैटर्न चल रहा है, ओके, दैट इज नॉट एडवाइजेबल. यूपीएससी आज के टाइम पे ऐसे स्टूडेंट्स को चाहता है जिनको थोड़ा बहुत दुनियादारी की समझ हो, प्रैक्टिकल लाइफ की समझ हो. ओके, आई ऑलवेज स्पीक, अगर आपने मेरी ब्लॉग पढ़ी है वेबसाइट के ऊपर, अबाउट द बुक स्मार्ट वर्सेस स्ट्रीट स्मार्ट, ओके, टू बिकम द IAS officer, to crack this examination, then you would realize कि actual में street smartness कहाँ से आएगी. So not everything can be prepared in libraries. Okay, not everything can be done with the help of books only. Okay, for some part we also have to take experience from life. Okay, this is what they are asking questions. Got it? So you should know about that. Okay, they are asking about कि right to marriage किस right के अंदर आएगा. Got it? क्या ये आर्टिकल 21 का पार्ट है? राइट टू प्राइवेसी किस राइट के अंदर आएगा? 2 बार उन्होंने राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछ दिया है. गॉट इट? दिस इज समथिंग जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. ये आपको मिलेगा न्यूज डिस्कशंस में. गॉट इट? न्यूज पेपर में आपको मिलेगा ये. ओके, डिबेट्स में आपको मिलेगा ये. राइट? सो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर लास्ट 60 डेज में मुझे IAS क्वालिफाई करना है, तो जाहिर सी बात है 6 to 8 आवर्स मिनिमम मुझे लगेंगे. गॉट इट? नाउ वी हैव अ जेन्युइन क्वेश्चन फ्रॉम वर्किंग प्रोफेशनल एस्पिरेंट्स, राइट? आई डू अंडरस्टैंड आप इतने आवर्स नहीं निकाल सकते. So for you guys, we have a shortcut. Got it? So उसके लिए एक स्टडी प्लान मैंने आपको अलग से बताया था. ओके, अगर आप में से किसी और को भी अभी प्रॉब्लम है कि नो नो नो
Okay, still I'm confused how to cover along with the job. We are not able to, leave the job. We are not able to resign that. Okay, somehow we have financial pressures also. So this is why we have to keep continue our job. Okay, and at the same time, we have to qualify this examination also. All right. So for you guys, I would let you know some of the hacks also, some of the additional tricks, but that would be quite, very, very, what do you call? I mean, बहुत risky होगा. It would be a huge risk. But considering the fact that you are a working professional and you have to qualify this exam, I would suggest you. Got it? But for the general aspirants, okay, preparing full time, minimum 8 hours to be required. I don't usually say कि hours के हिसाब से study करो, follow the targets. If you are able to finish the target in 5 hours, good to go. If you are able to finish the targets in 12 hours, good to go. आपको target finish करना पड़ेगा. You don't have a choice. Okay? ये 2025 people के लिए मैं कह रहा हूँ. For the next year students, okay, take it easy. 5 hours, 6 hours would be good enough. Okay, yeah. All right. Still only 9 people. What are other people? Priyanka, try to be on time. Okay, take it. So let's begin the target of the day. Okay. So target of the day, today we are going to talk about 2 things. The first one is about the mapping section, everybody. Mapping section, we are covering the Middle East part, which is again favorite of UPSC. Got it? They are asking question from this region every year. Prelims examinations also, mains also, and even in interview. Got it? Because in Middle East region, there are some sort of international relations development also. Got it? So for that's why we have to go through them, okay, accordingly. And yesterday we discussed about some of the countries, some of the political map and physical map of the Middle East. Okay, what about the Caspian Sea? Okay, Red Sea, Mediterranean Sea. Okay, and which are the big countries in this region? This is what we have definitely have gone through, right? Today we will continue with the different other water bodies like Caspian Sea we have done. In today's class we are going to do about the Black Sea. Again favorite of UPSC. Black Sea पिछले 2-3 years से न्यूज में रहा है. क्यों? क्योंकि वहां पे यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा है. Got it? And उसकी भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स ब्लैक सी के ऊपर क्वेश्चन पूछा. लास्ट ईयर भी ब्लैक सी के ऊपर क्वेश्चन था. Got it? Which of the countries is actually making border with the Black Sea? Okay, so you are supposed to know every single country is making border with such kind of important water bodies. Okay, there could be thousands of or maybe millions of different water bodies on this land, on this mother earth. Okay, but not everything is important. Okay, but if there is 5 to 7 important water bodies like Caspian Sea, South China Sea, okay, and this Black Sea, got it. So definitely we can master them, right, everybody? Yeah, try to be on time, Aditi. Fine, every minute is very important. Okay. And apart from that, for the mental development, okay, because this is the very first week of our 45 days mastery program. So here, the biggest challenge for me is that to change your mind. Okay, I have to change your mind. The way you are perceiving this exam, the way you are perceiving this exam, you look at this exam, you analyze this exam, that is something I have to, unlearn. Got it? वो change करना पड़ेगा. Because if you go with the conventional sort of strategy, conventional sort of study, you won't be able to qualify this exam. Okay, UPSC needs, people who are having some kind of qualities like clarity, like objectivity, like decision making, like pressure handling. Got it? So how we are going to do, how we are going to perform in that particular situation, right, everybody? So for that, I'm going to show you the original questions of UPSC, and at the same time, I'll be talking about 45 different techniques. Okay. So since this is the initial class, तो maybe आपको बहुत ज़्यादा आसान लगे वो techniques, and maybe tough भी लगे. It completely depends on you. Okay, it's highly subjective in nature कि आप एक piece of information को किस तरीके से अपनाते हो अपने mind में. Got it? You people are getting? भारनी, दीपा, गार्गी, काजल, कुछ समझ में आ रहा है? आपको लगता होगा कि सर डायरेक्टली क्लास क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? बस चैप्टर निकालो और पढ़ाना शुरू करो. ये फालतू की डिस्कशन क्या चल रही है, राइट? आई एम टेलिंग यू, दिस इज द एक्चुअल प्रिपरेशन. जो आपको मैं स्ट्रैटेजी और अप्रोच बता रहा हूं, दिस इज द एक्चुअल वर्क दैट वी आर सपोज्ड टू डू. ओके, नॉलेज इज सेकेंडरी, अप्रोच एंड पर्सनालिटी इज द प्राइमरी in the current pattern of this examination. All right, so this is why we have to devote 10 to 15 minutes every day, okay, in order to change our approach towards prelims examination. And trust me, after going through this 45 days of this aptitude session, even your perspective for the life is going to be changed. The way you take decisions, okay, the way
you see a particular piece of a statement, right? Okay, it's going to be changed in a positive way, of course, right? So you are going to be a wonderful administrator, okay, or any leader in any walk of life, okay. Even if you are going to do anything else, okay, unfortunately अगर नहीं हो पाया यूपीएससी में तो ऐसे होगा नहीं. अगर आप मेहनत करोगे, इस प्लान को फॉलो करोगे, तो my personal guarantee you are going to make it. Okay, we have been doing this for the past 5 years, okay, so you can also do that, right? बप्पा, दिस इज नॉट द टाइम. ये टाइम नहीं है क्लास में आपके आने का. 2 महीने में आपका एग्जाम है. शो सम सीरियसनेस मैन, शो सम सिंसियरिटी, राइट एवरीबॉडी? ठीक है. So let's begin. I'm going to share the screen, okay? And everything, whatever I'm writing here, I will be providing you. So I want your undivided attention, okay? Notes बनाने में, लिखने में, रफ बनाने में, okay? Time waste मत करो. Is that clear to you? वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ. वी आर वर्किंग फॉर यू, ओके. सो आई वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन. कंप्लीटली आपको अपनी स्क्रीन पर और मेरी बातों पे फोकस करना है. इज दैट क्लियर टू यू? यस. All right, everybody. So for some of you people who have been, students of my previous batch, okay, it is going to be a revision for you. But trust me, you people are still, doing blunder. You people are still doing blunder in solving MCQs and even the test series. So that is why we have to again and again go through this mastery strategy of all the elimination techniques and analytical skills. Okay. So guys, before moving forward, I want to tell you something. See, in examinations, we have 70 plus questions. We have 70 plus questions, okay, that can't be solved on the basis of knowledge, okay, but they are going to be solved definitely on the basis of elimination techniques, right? Elimination techniques. Now, elimination techniques are of 3 types. Got it? 3 तरह के elimination techniques होते हैं. ध्यान रखोगे आप ये. First one, rules. मतलब दे आर नॉट ऑफिशियल रूल्स. यूपीएससी ने कुछ ऑफिशियल रूल नहीं दिया है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा करोगे आप. नहीं, ये वी हैव डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज, राइट? यस, बिकॉज यूपीएससी हैज लूप होल्स. वो एमसीक्यू जब फ्रेम करते हैं तो उनके पास कुछ लिमिटेशंस आती है, ओके, एंड दिस इज व्हाट गिव अस बेनिफिट टू अस, राइट? सो कुछ रूल्स हैं. वो रूल्स क्या है? आई विल टेल यू, ओके, जस्ट वेट फॉर थिंग्स. रूल्स क्या होते हैं मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे अभी तक आपने जो ओल्ड स्टूडेंट्स उनको पता होगा, जैसे ओनली लिखा है तो गलत हो जाएगा. वो कांट लिखा है, कैन नॉट लिखा है, तो वो स्टेटमेंट यूजुअली गलत हो जाएगा. ये जनरल चीजें हैं. इनफैक्ट नाउअडेज पिछले 2-3 सालों में यूपीएससी अब इसको फॉलो भी नहीं कर रही है. गॉट इट? क्योंकि यूट्यूबर्स इतने ज्यादा हो चुके हैं, ओके, अपनी व्यूज पाने के लिए दे आर क्लेमिंग एवरीथिंग. ओनली आएगा तो गलत कर देना, कैन नॉट होगा तो गलत कर देना, कैन होगा तो सही कर देना. इफ यू एनालाइज पास्ट 2 to 3 years पेपर, तो आप देखोगे कि सारे ऑप्शन में ओनली को एलिमिनेट करना था ना, तो 4 स्टेटमेंट और 4 के 4 स्टेटमेंट में यूपीएससी ने ओनली लिखा है. आप क्या करोगे? गॉट इट? बट इसके अलावा ये तो जनरल बात है. इसके अलावा एक सेकंड स्टेज आती है, हाई लेवल स्टेज. जो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप फिर उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉनोटेशन क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है, वो समझने की कोशिश करता. आई विल बी ट्रेनिंग फॉर यू, डोंट वरी, ओके. आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल इंट्रोडक्शन एवरीबॉडी. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द एबीसीडी. गॉट इट? यस. सो रूल्स कुछ होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा और इसे आपको मानना है कि ऐसा है तो ऐसा होगा. गॉट इट? वो होगा ही होगा. दैट इज अ रूल. Fine, I will be training you every single rule, don't worry. Fine. Chalo. Second is logical, okay, or we call it analytical. Got it? So यहाँ पे क्या होता है? You will be given with this some statements, right? I will give you 1 statement, 2 statement, 4 statements, whatever it is. And on those statements, of course, after perceiving the piece of information in the statements, you have to, try to do a little bit analysis, a little bit. You have to apply your logic on those statements. वो logic क्या होंगे? I will be telling you. आज की क्लास में 45 logic I am going to tell you. और उसकी ट्रेनिंग भी होगी. Next 45 days में we are going to, do solve the PYQs original questions with the help of those elimination techniques. Got it? So ये यहाँ पे आपको logic अप्लाई करनी पड़ेगी. यहाँ पे आपका माइंड का काम करना पड़ेगा. Got it? If you are simply thinking कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ओके, हु हैज गिवन द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय, ओके, एंड द आंसर वुड बी अकबर द सेकंड, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नो माय फ्रेंड, नो सर एंड मैम, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन.
Got it? This is not going to happen. They will ask you, Tansen has created some ragas. Okay, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे वो. This is not a factual information, but this is purely a logical statement. Got it? अब आप बोलेगे सर हमने तो ये पढ़ाई नहीं है, तानसेन ने राग बनाए कि नहीं बनाए हैं, ये कैसे पता चलेगा? नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है ही नहीं. आप सिंपल एक लॉजिक लगाओ, तानसेन वाज अ म्यूजिशियन. तानसेन एक म्यूजिशियन था, तो म्यूजिशियन का काम क्या होता है? राग बनाना ही तो काम होता है ना, तो डेफिनेटली उसने बनाया होगा. इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें. AR रहमान साहब, हिमेश रेशमिया साहब, ये कुछ राग बनाएंगे या नहीं बनाते, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिंस दे आर म्यूजिशियन, दिस इज देयर जॉब. यस और नो? ये स्टेटमेंट यूपीएससी आपसे पूछती है. गॉट इट? ठीक है. सो एक होता है रूल्स, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है लेकिन रूल है. ओके, ये ऐसा है तो वैसा होगा ही, मान के चलना है आपको कि वो चलेगा ही चलेगा. आई विल बी ट्रेनिंग फॉर यू. और सेकंड आता है लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स, जहां पे आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा. ओके, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा. गॉट इट? राइट. चलो, और थर्ड एलिमिनेशन जो टेक्निक होती है वो बेसिकली होता है आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर. ओके, ऑब्जर्वेशन. उस स्टेटमेंट को आप भी पढ़ोगे और मैं भी पढ़ूंगा, बट एक किसी और तरीके से परसीव करेगा और दूसरा किसी और तरीके से परसीव करेगा. गॉट इट? सेम स्टेटमेंट, सेम पीस ऑफ स्टेटमेंट. गॉट इट? सो वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी कितनी अच्छी है. ओके, तो वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर अगर आपने काम कर दिया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. गॉट इट? कि यूपीएससी पूछ क्या रही है. राइट. यस, इट रियली डज मैटर. इट happens every year. Got it? Every year. For the example, there was question like कि यूपीएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, इट्स लाइक कि अशोका के ऊपर, सम्राट अशोका. गॉट इट? और सम्राट अशोक से रिलेटेड कुछ प्लेसेस के नाम दिए हुए थे. गॉट इट? कुछ प्लेसेस जैसे कंगन हल्दी, ऑलराइट, शहबाज गढ़ी, ओके, रामपुर, or maybe any other one, let's say Lothal. Got it? Right. अब नाम उन्होंने सम्राट अशोक का नाम सम्राट अशोक नहीं दिया है, उन्होंने सम्राट अशोक का नाम वहां पर दिया है रान्यो अशोका. रान्यो अशोका. दिस इज द यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन गाइस. गॉट इट? राइट. सो रान्यो अशोका पढ़ने के बाद कुछ लोगों को नॉर्मल लगेगा. ओके, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि रान्यो अशोका ठीक है, अच्छी बात है. गॉट इट? चलो, यहां पे मैंने 4 ऑप्शंस के नाम भी दिए थे आपको. राइट एवरीबॉडी? एक मैंने बताया था आपको कंगनहल्ली, राइट, और एक नॉर्मल टिपिकल ले लेते हैं रामनगर. गॉट इट? एक ले लो लोथल, और एक ले लो शहबाजगढ़ी. शहबाजगढ़ी. सो लोगों के लिए 99% स्टूडेंट्स के लिए नथिंग इज यूनिक हियर, नथिंग इज डिफरेंट हियर. But for the 1% students who are going to qualify this exam, 10,000 people who are going to write the mains, they would see that Kanganhalli is a South Indian name, and rest of the names are North Indian name. Got it? आप समझ रहे हो? तो this is what? इसमें एक ऑब्जर्वेशन है. आपने उस एग्जामिनेशन हॉल में उस लेवल पे ह्यूज प्रेशर में, गॉट इट, अगर आपने इतनी सी ऑब्जर्वेशन कर ली, द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सॉल्व. Rannu Ashoka is also a typical South Indian name. Got it? And Kanganhalli is also a typical South Indian name. Okay? So can we go with the Kanganhalli? Yes, and that is the right answer. आप समझ रहे हो? तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है आपको, बहुत ही ज्यादा. Got it? ठीक है. ये एक एग्जांपल था. In next 45 days we are going to solve 45 PYQs on the basis of such kind of analysis. सो यूट्यूब के ऊपर आप जाओगे, मार्केट में जितने भी लोग फेल्ड स्टूडेंट्स हु नेवर क्रैक दिस एग्जामिनेशन, दे आर आल्सो रनिंग द पेड कोर्सेज. सम ऑफ देम आर डेफिनेटली डूइंग गुड जॉब. ओके, नो ऑफेंस, बट मोस्टली पीपल आर एक्चुअली दे आर सिंपली इन ऑर्डर टू मेक मनी, दे आर मैनिपुलेटिंग स्टूडेंट्स. सो दे पीपल कैन ओनली टेल यू अबाउट रूल्स, दिस काइंड ऑफ रूल्स. कि ओनली होगा तो कट कर देना, कैन होगा तो राइट कर देना. गॉट इट? बट वो आपको लॉजिकल और एनालिटिकल माइंड के ऊपर ट्रेन नहीं कर सकते. गॉट इट? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल की डेवलपमेंट होती है और ये उनको भी नहीं पता होता है. गॉट इट?
दैट्स व्हाई यूट्यूबर्स तो पिछले 5 सालों से बता रहे सारे ट्रिक्स आपको, बट स्टिल यू आर गोइंग टू द एग्जामिनेशन, आर यू एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन? नो, यू आर अगेन फेलिंग। गॉट इट? एंड देन यू आर डूइंग सेल्फ डाउट ऑन योरसेल्फ कि मुझे नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा था, अगली बार बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। इट्स नॉट द केस माय फ्रेंड, योर अप्रोच इज रॉन्ग। टाइमिंग कहीं से है ही नहीं यहाँ पर कि आपने 1 घंटा पढ़ाई करी कि 4 घंटे पढ़ाई करी, जॉब के साथ तैयारी करी कि नहीं करी। ये अप्रोच की प्रॉब्लम है। नोबडी हैज एक्चुअली टॉट यू कि व्हाट इज द राइट अप्रोच टू गो विद दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन। किसी ने बताया नहीं आपको कि पढ़ना कैसे होता है, किसी ने बताया नहीं कि ऑप्शनल रेडी कैसे करना होता है। ऑप्शनल को 30 डेज में आंसर राइटिंग करके 300 प्लस स्कोर हम कर सकते हैं। नोबडी हैज टॉट यू एक्चुअली। एवरीबॉडी इज टीचिंग यू कि 4 मंथ्स का कोर्स है, उसको पढ़ो अच्छे से, 4 किताबें और एडिशनल पढ़ो, उसका वैल्यू एडिशन होगा, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाओ और अल्टीमेटली 10 नोटबुक्स आपकी रेडी होगी। ओके, और इसे बनाने के बाद आपको लगता है कि यस मैंने तो तैयारी कर ली है, बट व्हेन आई गिव यू अ सिंगल क्वेश्चन टू राइट फॉर द आंसर राइटिंग, यू पीपल आर गेटिंग कोलैप्स्ड। ओके, इतना वाहियात आंसर आप लोगों ने लिखा है। ओके, आई एक्चुअली टुक अ सरप्राइज टेस्ट फॉर द ऑप्शनल ऑन लास्ट सैटरडे एंड पीपल एक्चुअली इतना वाहियात आंसर इन्होंने लिखा है कि व्हाट शुड आई से। मैंने उनमें से कई लोगों को सजेस्ट भी कर दिया कि अगले साल के लिए जाओ, 2026 के लिए। गॉट इट? द प्रॉब्लम इज कि गलती आपकी नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं वो चीज। हमें मार्केट में जो चीजें बताई जा रही है वी आर फॉलोइंग दैट। गॉट इट? द प्रॉब्लम इज दैट कि आप यूपीएससी के छोड़ के सबकी सुनते हो, यूपीएससी के पीवाई क्यूज को छोड़ के आप सबकी सुनते हो। गॉट इट? टेस्ट सीरीज की भी सुन लेते हो। ऑल राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में चाय वाले हैं, बुक वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, एवरीबॉडी इज गाइडिंग। गॉट इट? सुन के भी सुन लेते हो आप, बट यूपीएससी की तो सुनते नहीं है आप। ओके, सो इस सिचुएशन में आपको वही ट्रेन कर सकता है जिसने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ओके, मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स के अंदर काफी शानदार स्कोर किया है। ओके, जिसने साइकोलॉजी के ऊपर अ लिटिल बिट साइकोलॉजी और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर थोड़ा सा काम किया हुआ है, दे वुड बी द राइट पीपल। एंड दिस इज व्हाई अगर कोई आपके आसपास में सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो उसकी मेंटोरशिप लेनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी मेंटोरशिप लो, आई एम टेलिंग यू एनी सिलेक्टेड कैंडिडेट, बिकॉज जो सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको बताएंगे ना, वो कभी भी नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट बता ही नहीं सकते आप, क्योंकि उन्होंने कभी उस लेवल पे चीजों को देखा ही नहीं है। गॉट इट? वो एक्सपीरियंस सिलेक्शन के बाद ही आएगा। आप समझ रहे हो? तो ये मेंटल लेवल पे काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मुझे डिस्कशन करनी पड़ेगी, अप्रोच बताना पड़ेगा, सो दैट आपका माइंड अनलर्न करे बहुत सारी चीजों को। आपने बहुत सारी गलत पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अप्रोचेस अपने माइंड में बैठा रखा है। समझ रहे हो काजल, दीपा, आयुषी, आलिख्या? राइट? ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन एवरीबॉडी। मैं आपको बताता हूं क्या है। सो यहाँ पे देखो, दिस इज आवर ब्रह्मास्त्रास। ऑल द ब्रह्मास्त्रास मींस ट्रिक्स बेस्ड ऑन लॉजिक, रूल्स, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। मैंने आपके लिए 45 इयर्स पीवाईक्यूज के बेसिस पे आई हैव प्रिपेयर्ड 50 प्लस टेक्निक्स फॉर यू एंड आई विल बी ट्रेनिंग यू ईच ऑफ द टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल पीवाईक्यूज इन नेक्स्ट 45 डेज। एंड इस तरह के क्वेश्चन 70 प्लस आ रहे हैं एग्जाम में। कितने गए? 70 प्लस। और जो आप लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट, एनसीईआरटी से जो पढ़ोगे, वहां से ओनली 30 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और वो भी अब एप्लीकेशन बेस्ड कर दिया उन्होंने। डायरेक्टली नहीं पूछ रहे वो, उसमें भी अ लिटिल बिट एप्लीकेशन पूछ देते हैं वो। गॉट इट? दे आर नॉट आस्किंग कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, टेल मी समथिंग अबाउट मनी मल्टीप्लायर। नो, दे आर आस्किंग कि आपके पास बैंक में 1 लाख रुपया, यू जस्ट विड्रॉ, आपने अभी उसको विड्रॉ कर लिया, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, मल्टीप्लायर ही है, बट उन्होंने वो वर्ड ही नहीं पूछा आपसे, उन्होंने एप्लीकेशन बेस पूछ लिया। काजल, क्या आपके पास 1 लाख रुपए बैंक में, वो आपने निकाल लिए। ओके, तो अभी इमीडिएट सिचुएशन में, अभी वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। वो ऐसा आप नहीं कर सकते डायरेक्टली। राइट? ठीक है। सो यू कैन सी दीज आर all the techniques that I'm going to train you for that. So let's talk about 3-4 things. ओके, अगर आपने मेरी कल की जो मैंने सजेस्ट किया था आपको, ओके, एप्टीट्यूड सेशन मास्टरी 1, वो आपको जरूर देखना है। वो सेशन अगर आपने देख लिया है तो वहां पे आपकी सारी चीज मैं क्लियर कर चुका हूँ। गॉट इट? ये कट ऑफ है आपकी इस साल 96 लास्ट ईयर, और इससे पहले 75 था। आप देख रहे हो 20 मार्क्स का वेरिएशन आ रहा है। तो अगर किसी ने सोचा होगा लास्ट ईयर 75 था, दिस ईयर ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा? 80 जाएगा। तो 80 को अगर जिसने टारगेट बनाया था उसका क्या हुआ होगा इस बार? गॉट इट? तो कभी भी आपको कट ऑफ देख के अपनी एनालिसिस नहीं करना होता, आपको हमेशा 110 नंबर प्लस का सोचना होता है। गॉट इट? मुझे करना है 110 प्लस, कुछ भी हो, जैसे भी हो।
दैट वुड बी अ सेफ जोन एवरीबॉडी। ओके, सो यूपीएससी आपके अंदर क्या चेक कर रही है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेती है। एवरी डे जितनी बार बताऊं उतना कम है गाइस, क्योंकि आपके दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है, राइट एवरीबॉडी। सो यूपीएससी आपके अंदर इन कुछ चीजों को देख रही है। सबसे पहले एनालिटिकल स्किल्स। ओके, आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स है कि नहीं। इफ यू आर गिवन विद द 5 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स, तो हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज दैट। आप इसका विश्लेषण कैसे करते हो। आपका माइंड वहां पे क्लास तो नहीं कर जाता है, टेंशन तो नहीं होने लगती, सर में दर्द तो नहीं होने लगता है। गॉट इट। नंबर 2, लॉजिकल एंड ऑब्जर्वेशनल माइंड। ऑब्जर्वेशन का मैंने एग्जांपल दिया था अभी, कंगनहल्ली साउथ इंडियन नेम है। कोट्टयम, एक बार उन्होंने पूछा इफ यू ट्रैवल फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टयम देन हाउ मेनी स्टेट्स यू हैव टू क्रॉस। गॉट इट। सो कई लोगों को कोहिमा पता होगा बिकॉज दैट्स द कैपिटल ऑफ नागालैंड, बट कोट्टयम क्या है, कहां पड़ेगी, कैसे पता चलेगा। गॉट इट। तो उसके लिए आपका माइंड ऑब्जर्वेशनल माइंड होगा तो आंसर बता देंगे कोट्टयम। लास्ट में यम आ रहा है, राइट, लास्ट में क्या आ रहा है, यम आ रहा है। ओके, तो किस लैंग्वेज में लास्ट में यम की प्रोनाउंसिएशन आती है, लाइक नमस्कारम। ओके, किस लैंग्वेज में, इट्स मलयालम, केरला। गॉट इट। चलो, ऑब्जेक्टिविटी एंड एप्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा ये चेक करते हैं, और आपको लगता है कि ये सिंपली जीएस 4 के अंदर चेक हो रहा है, नहीं। एट एवरी स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन दे आर चेकिंग इट। गॉट इट। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी। ये सर थी, व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी। Sir, objectivity means we have to think in every aspect, sir, and with rationality we have to think. It's not something कि हम कुछ भी उसमें लिखा है हम उसको accept कर लें. हाँ, keeping in your mind the central idea or the central demand of the question. Yes, sir. ये भी आता है इसके अंदर, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन कि आपके माइंड में सेंट्रल आइडिया है, डिमांड है, एंड गोल पता है आपको क्या करना है। गॉट इट। जैसे आपका एंड गोल है कि 30 डेज में ऑप्शनल फिनिश करना है, Right, sir. गॉट इट, बट यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, यू स्टार्टेड टू राइट एंड read all the books available in the market, but you forget your main goal कि I have only 30 days. ओके, पता चला पूरे महीने एक ही किताब में निकल गया आपका, only 2 units have been covered from your optional. Okay, so that's not objectivity. Objectivity का मतलब है कि I have to finish in 30 days. Got it? And then you apply your rationality, your logic, your efforts. Okay? Yeah. Yes, sir. सही बात है। एलिमिनेशन टेक्निक बात कर चुकी हूँ, बट ये ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे ऑनली लिखा है तो ऑनली देख के कट मत करो, उस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर देखो क्या हो रहा है उसके अंदर। गॉट इट। चल, इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल टफनेस कैसे पता चलता है एवरीबॉडी, राइट। कैसे चेक करते हैं वो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप समझ रहे हो। दीपा, गार्गी, आप समझ रहे हो यहाँ पे कैसे पता चलेगा। यू विल ओपन योर क्वेश्चन पेपर एंड स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस, toughest of the tough questions, toughest of the tough questions. Got it? ऐसा होगा क्वेश्चन वहां पे। ओके, जैसे 2019 में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे 12-13। गॉट इट। 2020 में, 2019 के अंदर मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, 2021 के अंदर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थे, 2024 के अंदर 3 मैचेस दे रखा उन्होंने। यूजुअली मैचेस 2 होते हैं ना, राइट, 2 टेबल बनती है मैचेस के अंदर, बट इस बार यूपीएससी ने 3 टेबल बना रखे थे, 3 टेबल, 3 मैचेस, तीनों को मैच करना है आपको। गॉट इट। 2022 में क्या पैटर्न था एवरीबॉडी, दे आर आस्किंग, उन्होंने आपको कोड नहीं दिए। पहले क्या होता था, कोड देते तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ, या 2 and 3, इस तरीके से कोड मिलता था। 2022 में उन्होंने क्या बोला, हाउ मेनी मैचेस आर कर रहे, कोड है ही नहीं। गॉट इट। ऐसा 8 क्वेश्चंस में दिया था उन्होंने। तो क्या करोगे आप, आपका माइंड बोलेगा कि यार ये तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की, ये तो कुछ और है, मैंने पढ़ा कुछ और था, कोचिंग वालों ने पढ़ाया कुछ और यहाँ पर आया कुछ और है। ओके, आई एम गेटिंग फेल्ड, राइट। और नेक्स्ट ईयर का टारगेट बनना आपका शुरू हो जाएगा वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में। इट हैपेंस ना। सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास नहीं था, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं था। इमोशंस को पालना सीखो, अपनी भावनाओं को पालना सीखना पड़ेगा आपको, या फिर टेम योर इमोशंस। ओके, आपका मूड अच्छा है, अच्छा नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। गॉट इट, राइट। इट रियली डजंट मैटर, एग्जाम में परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ जाए, एनिमल किंगडम के क्वेश्चन आ जाए, करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, राइट। चलो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और मेंटल टफनेस और कैसे चेक कर रहे हैं अब वो, लेंथी पेपर बना के, बहुत ही ज्यादा लेंथी पेपर, मतलब एक राउंड में भी वो पेपर फिनिश ही नहीं हो पा रहा और टाइम अप हो गया। आप समझे, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया और क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंचना था आपको,
बट 11:30 हो चुकी है, 9:30 पे पेपर शुरू हुआ था, टीचर ने आपकी पेपर छीन ली। गॉट इट? इट हैपेंस और नॉट? सो पेपर बहुत ही ज्यादा लेंथी आ रहा है। क्यों लेंथी है? बट उसका शॉर्टकट भी है। अगर आप इसे नॉलेज के बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सोचने पर ज्यादा ध्यान दोगे, 5 मिनट्स एक ही क्वेश्चन में लगा दोगे एनालिसिस करने में, तो ऑफ कोर्स यू आर बाउंड टू फेल। द पेपर हैज बीन डिजाइन्ड इन दैट वे। गॉट इट? Go for some other examination. This is the message of UPSC. We are here to select Group A officers, IS, IPS, IRS, IFS, to run this country. Got it? If your mind is clerical, with all due respect, I'm saying this. If your mind is clerical, got it? If your mind is suitable for the army, you should go for that job. If your mind is suitable for the business, you should go for that one. Got it? But not for UPSC. This is what they are checking actually, right? सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड एंड प्रेशर हैंडलिंग, ये कैसे आएगा? क्वेश्चन सॉल्व करके, टेस्ट सीरीज लगा के, और सारी ट्रेनिंग हम आपको देने ही वाले हैं, राइट एवरीबॉडी? और इस लॉजिक को, इस पैटर्न को फॉलो करके मैंने लास्ट 850 प्लस स्टूडेंट्स को लास्ट 5 years में आई हैव मेड क्वालिफाइड देम दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। गॉट इट? इट्स ह्यूज। एवरी डे आई डन दिस प्रोग्राम ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स। गॉट इट? सो इन लास्ट 5 years आई स्टार्टेड दिस इन 2019, end of the 2019. Okay, and we have qualified 850 plus students. Earlier I was working with the NGOs. Okay, हम होंगे कामयाब NGOs 100%. Got it? Right everybody? Anyway, let's leave it. Now what is the Brahmastra 1? I'm going to start to teach you the tricks everybody. Right? You are here Sahil? Yes Sahil, I want your undivided attention please. Got it? Because आपकी knowledge बहुत कमाल की है। Yes, बहुत sir. ही कमाल की है, but you don't apply logic, my friend. Please pay attention. All right? Yes, this is for everyone. Please focus. So what is the Brahmastra 1? The first logic, everybody. The first logic is आपका माइंड शर्लॉक होम्स या जेम्स बॉन्ड की तरह होना चाहिए। आप बोलोगे ये सर फिक्शनल कैरेक्टर है। अरे एक्चुअल में भी तो होते हैं ना, सीआईडी में लोग होते हैं, सीबीआई में होते हैं, रॉ के अंदर लोग होते हैं, आरएनएडब्ल्यू, आईबी के अंदर लोग होते हैं, सीआईए, गॉट इट, मोसाद, इनमें जो लोग होते हैं वो क्या वैसे ही तो होते हैं और कैसे होते हैं। लेकिन आप जानते हो शर्लॉक होम्स को, जेम्स बॉन्ड को, गॉट इट, दैट्स व्हाई मैंने उनका नाम लिया। तो अब ये लोग हैं कैसे? शर्लॉक होम्स या जेम्स बॉन्ड ये होते कैसे? ये समझाने के लिए आई एम गिविंग यू अ वंडरफुल स्टेटमेंट, ओके, डिजाइन बाय मी ओनली। पर्सनालिटी ऑफ आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर जो होते हैं उनकी पर्सनालिटी, गॉट इट, एंड माइंड ऑफ आईपीएस विल गेट यू इनटू आईएएस। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? ओके, सो अगर आपने आईएफएस ऑफिसर्स को देखा होगा, जैसे एस जयशंकर साहब इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर है, एम्बेसडर जो होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? दे आर हाईली डिप्लोमेटिक इन नेचर। कभी भी वो एक साइड लेते ही नहीं है, वो दे आर हाईली डिप्लोमेटिक इन नेचर। ओके, they are dealing with, like India is dealing with Ukraine also and Russia also. We are supporting both the countries. That's the diplomacy, guys. Okay, so we are dealing with both the guys, right? So that's the diplomacy. ये diplomacy आपके अंदर होनी चाहिए, like IAS IPS के अंदर होना चाहिए, right? तो डिप्लोमेटिक कैसा होता है? थोड़ा सा आपको pragmatic होना होता है, एक्सट्रीम नहीं होना होता है, मिडिल पाथ अपनाना होता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट एवरीबॉडी? सेकंड है नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द कंट्रीज ऑनर एंड डिग्निटी। एक डिप्लोमेट चाहे कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली द कंट्री शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारे सिचुएशन में, प्रीलिम्स के सिचुएशन में हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? हमारे रूल्स, हमारे लॉजिक, जो मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं। यू हैव टू बी लॉयल विद द रूल्स एंड लॉजिक। कभी भी ये नहीं सोचना है कि नहीं इसमें तो नॉलेज आना चाहिए था, नो, गॉट इट। आपको सोचना है रूल्स ऐसा है तो रूल्स के साथ मुझे जाना है, नॉलेज कुछ भी बोलता हूँ, गॉट इट। इफ यू आर 100% श्योर, देन ओनली यू गो विद द नॉलेज। इफ देयर इज सम कंफ्यूजन, गो विद द लॉजिक ऑल द टाइम, राइट? ओके, और प्लस ये कॉन्स्टिट्यूशन पे भी अप्लाई होता है। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर एवरीबॉडी, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट जो हमारी कंट्री को नेगेटिव वे में दिखाता है, हमारे गवर्नमेंट को नेगेटिव वे में दिखाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नेगेटिव वे में दिखाता है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे कल्चर को नेगेटिव वे में दिखाता है, दो स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी रॉन्ग ऑल द टाइम। यू आर गेटिंग इट? आज समझ में आपको? सो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जो फ्रीडम फाइटर्स को, हमारी स्वतंत्रता संग्राम को नेगेटिव वे में दिखाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी को नेगेटिव वे में दिखाएगा,
गवर्नमेंट को नेगेटिव वे में दिखाएगा, तो वो स्टेटमेंट्स रॉन्ग होंगे, गलत होंगे। आप समझ रहे हो? सो कंट्री को हमेशा टॉप प्रायोरिटी रखनी है, वो कभी भी गलत नहीं होगी। गवर्नमेंट इज ऑल द टाइम गुड। अब यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है आप लोगों को। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसी की भी हो, bureaucracy is always going to be the back stage of the government. Got it? We have to support the government because that is the mandate by the people of this country. This is completely democracy, right? अब सरकार किसकी है उस पर हमें बात ही नहीं करनी है। वी हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। एज अ सिविल सर्वेंट आई एम टेलिंग यू, एक सिविल सर्वेंट होने के नाते हमारी ये सोच होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए, अनबायस्ड ओपिनियन, न्यूट्रलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। थर्ड है ऑलवेज अबाइड बाय द लॉज एंड प्रिंसिपल्स। ऑलवेज, हमने आपको जो रूल्स दिया, हमने आपको जो लॉजिक बताए हैं और जो आगे बताएंगे, ऑलवेज यू हैव टू अबाइड बाय देम। गॉट इट? यू हैव टू फॉलो देम, राइट? चलो, तो आईपीएस वाली पर्सनालिटी आपको बनानी पड़ेगी अभी से। गॉट इट? आई एम नॉट टेलिंग यू कि कल से आप ब्लेजर और सूट पहन के घूमना शुरू कर दें। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। गॉट इट? बट अ लिटिल बिट माइंड चेंज विल हेल्प यू, राइट? ठीक है। फिर हमने कहा कि माइंड ऑफ आईपीएस, पर्सनालिटी तो आईपीएस वाली हो गई, लेकिन माइंड आईपीएस वाला कैसा होगा? अब आईपीएस आपको क्या पता, आईपीएस सिंपली पुलिस में काम नहीं करते हैं। गॉट इट? आईपीएस आरएनएडब्ल्यू के अंदर भी तो काम करते हैं ना, आईबी के अंदर भी तो काम करते हैं ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर भी तो काम करते हैं ना, इंटेलिजेंस में भी तो काम करते हैं ना, जैसे मिलिटरी इंटेलिजेंस एंड द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, राइट? मिलिट्री इंटेलिजेंस, तो वहां पे भी आईपीएस ही काम करते हैं। सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर्स वहां पे लीड करते हैं। तो आईपीएस का दिमाग यूजुअली कैसा होना चाहिए? शर्लॉक होम्स के बारे में आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, मूवीज देखी होगी, कैसा होना चाहिए? ब्योमकेश बख्शी, ये तो नाम सुना होगा आपने, इंडियन बंगाली फिक्शनल कैरेक्टर। कीन ऑब्जर्वर एंड शार्प आइज। कीन ऑब्जर्वर का मतलब स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई करो, कुछ वर्ड्स मिलेंगे आप, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है। आई विल बी ट्रेनिंग यू, है ना? जस्ट बियर विद मी। पिक्टोग्राफिक मेमोरी, पिक्टोग्राफिक मेमोरी एक बार अगर आप देख लो तो चीजें आपको थोड़ा सा याद रहे। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप 60 डेज में परफेक्ट बन जाओगे, लेकिन अगर आप 5 to 10% तो इंक्रीज कर सकते हो ना, राइट एवरीबडी? वी कैन डेफिनेटली इंक्रीज 5 to 10%। ओके, आवर माइंड स्किल्स टू डेवलप द पिक्टोग्राफिक मेमोरी, जैसे कल हमने किया था कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी देखो, दिमाग में कुछ आ रहा है कि कैस्पियन सी किस तरीके का डिजाइन है इसका? लैंडलॉक्ड है या किसी सी के साथ में मिल रहा है? देखो ईरान किस तरफ पे है, कैस्पियन सी को ध्यान में रखो, और देखो ईरान किस तरफ है, रसिया कहां पर है कैस्पियन सी के साथ में? गॉट इट? अजरबैजान की लोकेशन कहां पर है? गॉट इट? देखो इसको, मेडिटेरेनियन सी कहां पर है? गॉट इट? तो कुछ लोगों को क्लैरिटी बिल्कुल साफ आई होगी, और कुछ लोगों को अभी भी लग रहा होगा पता नहीं क्या ही है। गॉट इट? सो ऐसा क्यों? क्योंकि पिक्टोग्राफिक मेमोरी के ऊपर आपने काम नहीं किया, 10 मिनट 10 मिनट्स आपने मैपिंग के ऊपर आज दिया नहीं होगा। गॉट इट? इसलिए कंफ्यूजन आ रही है। गॉट इट? चलो, और आइडेंटिफाई एंड डिकोड द हिट्स। यूपीएससी डेफिनेटली आपको हिट देगी, समझ लो 100% यूपीएससी को हिट देना ही पड़ेगा। अगर यूपीएससी ने हिट नहीं दिया तो फिर दे आर गोइंग टू बी फेल्ड, वो अपने आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि नॉलेज के ऊपर दे नहीं सकते वो। नॉलेज के ऊपर देंगे तो कोचिंग वाले स्टूडेंट्स का फायदा हो जाएगा, आईआईटी वाले स्टूडेंट्स का फायदा हो जाएगा, पीएचडी वालों का फायदा हो जाएगा। व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज एस्पिरेंट्स? व्हाट अबाउट द सिंपल आर्ट्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स? गॉट इट? उनका क्या होगा फिर? सो दैट्स व्हाई उनको लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। अब लॉजिक के ऊपर पूछेंगे तो वहां पे आईआईटी वाला भी बराबर हो गया, और रूरल इंडिया से आया हुआ कोई बच्चा आर्ट्स का सिंपल ग्रेजुएट है वो भी ग्रेजुएट हो गया, राइट? यस बप्पा, थैंक यू। ओके, सो दिस इज हाउ आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। गॉट इट? बातें हमने बहुत कर ली, अब इट्स टाइम टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस एवरीबॉडी। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, 2018 में यूपीएससी ने पूछा था एवरीबॉडी। 2018 का ओरिजिनल यूपीएससी क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर दोगे इसका। कम ऑन। Any answer please in the chat box?
only for answer, rest of the people, okay, come on, be active. Okay, okay, good enough. यस, अदिति, दीपा, शिवम, बहुत ही बढ़िया। प्रियंका, बप्पा, बप्पा आपने आंसर नहीं दिया। साहिल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, बहुत ही बढ़िया। सो मोस्टली जहां तक मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने इसे नॉलेज से दिया। नॉलेज किताबों में नहीं है, लेकिन ये 2022 2018 का क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स आपने सॉल्व किया, तो अब आपको आंसर याद हो गया है। थिंक अबाउट कि आप 2018 के पेपर में बैठे हो, आपने पहली बार ही इसको देखा है, यू हैव सीन दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, गॉट इट? तब कैसे सॉल्व करेंगे आप? गॉट इट? मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं, यहां पर ध्यान दो। सो सबसे पहले स्टेटमेंट में देखो क्या है, यूपीएससी ने पूछा है आपको, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन के अंदर जी स्वतंत्र पार्टी, ये हमने नहीं पढ़ा है, वैसे ये क्लास 12 की एनसीईआरटी पॉलिटी वाले के अंदर है ये। ओके, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये बहुत ही अच्छी किताब है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए प्रीलिम्स के बाद पढ़ सकते हो, उसके अंदर ये मेंशन है, बट स्टिल मान के चलो नहीं पता। गॉट इट? चलो, सेकंड, in the Lok Sabha, a leader of the opposition was recognized for the first time in 1969. सबसे पहली बार 1969 में था। गॉट इट? इतना कौन पढ़ता है? हमें तो लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम भी नहीं पता है आज के टाइम पे। अभी तो खैर पता चल गया, लेकिन पिछले साल से पहले नहीं पता था। गॉट इट? सो एनीवे, तो यूपीएससी यहाँ पे आपसे क्या जानना चाह रही है? यूपीएससी आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करती एवरीबॉडी, यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि यू शुड नो दिस, दे आर इवन नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि यू शुड नो दिस। यूपीएससी आपसे ये उम्मीद कर रही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, यूपीएससी आपसे ये उम्मीद कर रही है कि आपको पता हो कि पिछले 10 सालों में हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, एलओपी नहीं था हमारे पास लोकसभा में, पिछले 10 साल से, 1 साल का भी न्यूज नहीं है, 10 साल का न्यूज है। गॉट इट? एलओपी था ही नहीं हमारे पास। तो यूपीएससी आपसे ये जानना चाह रही है कि पिछले 10 साल से हमारी कंट्री में एलओपी नहीं है, और ये न्यूज पेपर में भर भर के डिस्कस किया गया है। इसका रीजन पता है आपको? व्हाट इज द रीजन? यस आलिख्या, व्हाट इज द रीजन? थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे है आलिख्या? Sir, it is not about the leader of the opposition, sir. Then it is about what? कमाल है। ओके, ये सर थे। Yes, sir. Sir, it is not about, sir, it is about the leader of the opposition only, but it is not about the minimum 75 members. It should be How many? 1/10. 1/10, very nice. Yeah, am I audible? Yes, sir. So it should Yes. be 1/10. So that तो is the लोकसभा thing. में 1/10 कितना होगा? Sir, 55 होना चाहिए क्या? यस, हाँ, 55. 550 टोटल सीटें हैं, तो उसका 10% कितना होगा? 55। 55, yes. और दिस इज समथिंग जो हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है, न्यूज पेपर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फैक्ट अमंग ऑल दिस थ्री, राइट एवरीबॉडी? तो यूपीएससी आपसे चाहती है कि सिंपली आपको थर्ड पता हो। अगर आपको थर्ड पता है तब आंसर आ गया, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। अब आप में से कई लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जाते ही नहीं है। गॉट इट? वो नीचे जाते ही नहीं, यहीं पर छोड़ते रहिए, तो मैंने पढ़ा नहीं है, स्वतंत्र पार्टी था, बीजेपी तो कौन था नहीं पता, आगे बढ़ो, छोड़ दो। ऐसे भी नहीं करना है, आपको नीचे जरूर जाना है, यहाँ कोर्ट्स में जरूर जाना है एवरीबॉडी। जब आप नीचे कोर्ट में आओगे और आपको पता चल गया कि थर्ड तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बेसिक नॉलेज लेने के बाद, बेसिक लक्ष्मीकांत या पॉलिटी के हमारे नोट्स पढ़ने के बाद ये 100% क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर थर्ड रॉन्ग है तो ए हो गया रॉन्ग, सी हो गया रॉन्ग, डी हो गया रॉन्ग, क्योंकि इनमें 3 है, ऑटोमेटिकली आंसर इज बी। यू आर अंडरस्टैंडिंग इट? सो नोट एवरीथिंग अंडर द सन टू बी स्टडीड। सोर्सेस के पीछे, फ्री टेलीग्राम पीडीएफ के पीछे मत भागो, कुछ नहीं होने वाला है उससे। मिनिमम रिक्वायर्ड नॉलेज इज देयर, मिनिमम रिक्वायर्ड नॉलेज हो और ऑब्जर्वेशनल स्किल हो, लॉजिकल माइंड हो, तब आप 100% इसको निकाल पाओगे। आप समझ रहे हो इसे? कुछ समझ में आया आपको काजल? काजल जी? ओके, क्वेश्चन नंबर 2018 का अगेन क्वेश्चन नंबर 4 एवरीबॉडी, इसे सॉल्व करते हैं। यस एवरीबॉडी, ट्राई कीजिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, डिफरेंट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, सीपीसीबी से अलग है। कैसे कैसे अलग है? तो इसके लिए 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, ट्राई करो।
Any answer? Everybody, please answer. अगर आपको आंसर नहीं पता तभी रिस्क लो। ओके, रिस्क लो। यहाँ पे आपके एग्जाम में भी रिस्क लेना पड़ेगा। 90+ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? गुड इनफ, बहुत ही बढ़िया। ऑलराइट, बप्पा इज सेइंग आंसर शुड बी सी। ओके, गुड इनफ एवरीबॉडी। सो नाउ आप मुझे बताओ कि हमारे पास 500 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है देश के अंदर। बोर्ड्स हैं, अथॉरिटीज हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, गॉट इट, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो शुड वी मेक द लिस्ट ऑफ दोज 500 बॉडीज एंड वी शुड रिमेंबर कि इसमें से किसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे बनाया हुआ है और कौन सा स्टैट्यूटरी है लॉ के ऊपर और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के अंदर मेंशन है। ओके, डू यू थिंक यूपीएससी वांट्स अस? ओके, आई फील वेरी पिटी जब मैं टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर देखता हूँ कि पीपल आर एक्चुअली मेकिंग द लिस्ट ऑफ 500 इंस्टीट्यूशंस। एक टेबल बना रखा है उन्होंने एंड दे आर राइट, दे हैव रिटन एवरीथिंग ओवर देयर कि ये स्टैट्यूटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ओके, और ये एग्जीक्यूटिव है। और पीपल आर शेयरिंग दैट, दे आर डूइंग ऑल द रेक्टिफिकेशन। डोंट यू थिंक कि ये कुछ गलत हो रहा है? क्या यूपीएससी सच में हमसे ऐसा उम्मीद करती है? गॉट इट? नो, गॉट इट, वेरी नाइस। जिन लोगों ने आंसर दिया सबका आंसर सही है। बप्पा आपका आंसर गलत है। ओके, सी नहीं है, बी होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गॉट इट? चलो, आई वांट टू टेल यू समथिंग हियर। यहां पर ध्यान दो। एक चीज होती है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम। किसी भी चीज का जब नाम रखा जाता है, आपका भी नाम रखा जाता है, तो रैंडमली नहीं रखते हैं लोग। इसके पीछे कुछ रीजन होता है। गॉट इट? कुछ रीजन होता है। इंडिया का नाम इंडिया क्यों है, हिंदुस्तान क्यों है, भारत क्यों है, इसका एक रीजन है। यस और नो? सिमिलरली अगर यूपीएससी ने किसी का नाम रखा है, यहां पर किसी का नाम रखा है अथॉरिटी, गॉट इट, किसी का नाम रखा है उन्होंने बोर्ड, किसी का नाम आप देखते हो इंटरनेशनल लिखा है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, राइट, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, है ना, कंज्यूमर इंटरनेशनल, राइट। से नाम ऐसे नहीं है, रैंडम नहीं है। ये नाम एक्चुअल में कुछ सिग्निफाई करते हैं। यू आर गेटिंग दैट? एक्चुअल में ये कुछ सिग्निफाई करते हैं। ओके, सो जब कभी भी अगर बात हो अथॉरिटी की तो ये हमेशा स्टैट्यूटरी होंगे। आप समझ रहे हो? क्वेश्चन क्या था, एनजीटी के बारे में क्या लिखा है इन्होंने? एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली ट्रू। और सीपीसी भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया, ये भी गलत है। क्योंकि जब बोर्ड होते हैं ना, वो बोर्ड भी स्टैट्यूटरी होता है। गॉट इट? कमीशन जो होता है, कमीशन और कमिटी, ये हो सकते हैं कि ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया हो। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, बाद में लीगल हुआ है, वो स्टैट्यूटरी बाद में हुआ है। वो एक्चुअल में जब शुरू में आया था तो ये क्या था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था। आप समझ रहे हो? कोई कमिटी का नाम है, राइट, लेट्स से दिनेश वर्मा कमिटी बनाई गई है अबाउट द डिजिटल फाइनेंस, डिजिटलाइजेशन, गॉट इट, इन द कंट्री, राइट, फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी इन द कंट्री, गॉट इट। सो ये कमिटी, इसको बनाने के लिए किसी एक्ट की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट के एक लॉ पास करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, गवर्नमेंट के ऑर्डर से, गॉट इट, सिंपली बन जाएगा। ओके, वुड बी अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सारा एग्जीक्यूटिव वर्क उनके नाम पर होता है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट्स इट, राइट। सो कहीं पे अगर अथॉरिटी लिखा है, बोर्ड लिखा है, तो ये क्या होंगे, स्टैट्यूटरी होंगे। सेकंड, अगर इंटरनेशनल लिखा है तो इंटरनेशनल क्या होता है, ये एनजीओज होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में इंटरनेशनल लिखा है तो दैट वुड बी अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गेटिंग इट? जैसा भी मैंने आपको नाम बताया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी यूपीएससी ने कई बार पूछ दिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए काम करती है? एनीबडी? किसके लिए काम करती है? ह्यूमन राइट्स के लिए। सिमिलरली बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, BLI, बर्ड के लिए काम करती है। गॉट इट? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। कंज्यूमर इंटरनेशनल, कंज्यूमर के राइट्स के लिए बात करती है, ये उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बात करता है। गॉट इट? सो ये सारी चीजें आपको कब पता चलेगा? जब आप 45 ईयर्स की PYQ को सॉल्व करोगे 5 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, जब तक आपको क्लियर नहीं होता है।
बट उतना करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव डन दैट फॉर यू। ऑलराइट, हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम देके अच्छे से काम किया है, और फिर आपके सामने हमने ये सारी चीजें प्रिपेयर करके 50+ टेक्निक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है। तो कम से कम यू डू जस्टिस विद दिस पार्ट, एटलीस्ट आप इसके साथ तो जस्टिस करें, इसको तो मान के चलो कि सही है, इसको तो फॉलो करो, एंड इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट। अभी के लिए मैं आपको रैंडमली कुछ क्वेश्चन के थ्रू दिखा रहा हूँ, एक नॉमेनक्लेचर का था, एक ऑब्जर्वेशन का था, गॉट इट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं। राइट एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन द इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी एटीएम है, कैश विड्रॉइंग मशीन, है ना, उसे लिंक करने का काम कौन करेगा? व्हाट शुड बी द आंसर? गुड इनफ। सो इट्स रिवीजन। आदित्य ने लिख किया, ये रिवीजन एक तरीके से, ये मत सोचो कि पहले तो लास्ट बैच में आपको करवाया गया था, ये इट्स रिवीजन फॉर यू। दिमाग में जितनी बार इसे बैठाओगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। गुड इनफ, ओके नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है सबसे पहले सिक्योरिटीज। तो देखो कैश अलग चीज होती है, सिक्योरिटीज अलग होते हैं। अब तो क्रिप्टो करेंसी भी आ गया है, सीसी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, गॉट इट। ये अलग तरह का सिस्टम है, गॉट इट। बॉन्ड अलग होते हैं, आप समझ रहे हो। सो लिक्विड क्या होती है इसमें? कैश होती है, कैश लिक्विड होती है। एनीवे, सो यहाँ पे सिक्योरिटीज अगर लिखा और बात एटीएम के ऊपर की गई, तो इसका तो कोई लिंक ही नहीं है आपस में, ओके, क्योंकि एटीएम डील करता है कैश के साथ में, सिक्योरिटीज बॉन्ड्स के साथ में उसका डील ही है ही नहीं, राइट। तो बी को सीधे सीधे हम रॉन्ग कर देंगे, हमें आंसर नहीं पता, बट वी विल ब्रिंग द राइट आंसर, वी विल ड्राइव द राइट आंसर। सिमिलरली आरबीआई, आरबीआई इज द बाप ऑफ ऑल द बैंक्स। ओके, मैं इस तरह के वर्ड जानबूझ के बोलता हूँ इंटेंशनली, so that आपके दिमाग में वो लॉजिक अच्छे से बैठ जाए, राइट। सो आरबीआई इज द बाप और द गार्जियन ऑफ ऑल द बैंक्स, गॉट इट। इसका काम अब क्या करना है? मॉनेटरी पॉलिसी को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि सभी बैंक्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मॉनिटर करना है। इसका काम क्या है गाइस? मॉनिटर, मॉनिटरिंग करना है इसका। जैसे मेरा काम है ये मॉनिटर करना कि आप लोग क्या कर रहे हो, आर यू फॉलोइंग योर टारगेट्स, आर यू सॉल्विंग एमसीक्यूज, वो मेरा काम है, गॉट इट। बट यहाँ पे कौन सा काम पूछा है? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एटीएम को लिंक करना है। एटीएम को लिंक करने का काम आरबीआई का नहीं, आरबीआई का काम मॉनिटर करने का काम है बैंकों का, गॉट इट। सिमिलरली इंडियन बैंक एसोसिएशन, एसोसिएशन जो नाम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में अगर आपको दिखता है एसोसिएशन एवरीबॉडी, तो एसोसिएशन क्या होता है? वो मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती है, टॉप मैनेजमेंट के लिए, गॉट इट, जहां पे दे वुड टेक सम डिसीजंस बट दे विल बी इंप्लीमेंटेड बाय सम अदर पीपल, गॉट इट। तो बैंक एसोसिएशन है, तो बैंकों का आपने एक एसोसिएशन बना रखा है फॉर द टॉप मैनेजमेंट, फॉर द जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस, गॉट इट। It's like a discussion forum where all the banks can come together under one roof, okay, and they can share their opinions, right, and then they would suggest something to the government कि बैंकों के लिए ऐसा कुछ किया जाए, right. So this is the meaning of association, किसी भी एसोसिएशन का, right. चलो, एटीएम को लिंक करने का काम एक तरीके का क्या किस तरह का काम है? ओके, इट्स अ जॉब जो यूजुअली एक कंपनी करती है, गॉट इट। एटीएम को लिंक करने का, एटीएम को सेटअप करने का, गॉट इट। एक तरीके का ये मैन्युफैक्चरिंग काम है, ये एटीएम मशीन से आपको बनानी है और उसकी लिंकिंग करनी है। और इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का काम करेगी? जो कंपनी हो। कंपनी के लिए एक्चुअल वर्ड क्या है? कॉर्पोरेशन होती है, कॉर्पोरेशन, राइट एवरीबॉडी। चलो, ये भी नहीं पता तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तब आपको एनपीसीआई के बारे में बहुत सारी चीजें पता होंगी, क्योंकि आधार से रिलेटेड है ये, यूपीआई से रिलेटेड है ये, डेफिनेटली, गॉट इट। सो ये गवर्नमेंट की पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गॉट इट। सो ये काम पूरी तरीके से सुटेबल है कॉर्पोरेशन के लिए। तो दिस इज हाउ यू डिड्यूस द राइट आंसर। आप समझ रहे हो, राइट। राइट एवरीबॉडी,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस क्लास। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने बहुत ज्यादा अपने अप्रोच, अपने माइंड के ऊपर हमने काम किया, सो दैट यू नो जिस तरीके से यूपीएससी की डिमांड है, दे आर एक्सपेक्टिंग यू to think like a group A officer, an IAS officer, IPS officer, IFS officers. Then be the one. Got it? You are here to become an IAS officer only, no? Then be the one ना। अभी से क्यों नहीं आप अपने आप को मान के चलते हो कि yes, I am an IAS officer? तो इससे बन जाओगे क्या? बनोगे नहीं ऑफिशियली, ओके, बट आपका माइंड वैसा सोचना शुरू कर देगा। गॉट इट? देन कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए, आपका माइंड ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा, लॉजिक अप्लाई करेगा। गॉट इट? एंड देन यू विल कंक्लूड। उसके बाद आप इसके ऊपर कंक्लूजन निकालोगे, राइट? सो दिस इज अ वंडरफुल क्वालिटी दैट कैन मेक यू एन आईएएस ऑफिसर। ओके, सो डिस्कशन में ज्यादा टाइम क्यों लगा, राइट? बिकॉज इनिशियली हमें आपके माइंड के ऊपर काम करना है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। ओके, 2-3-4 डेज के बाद इतना डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होगी। देन डायरेक्टली वी वुड जंप ऑन द क्वेश्चंस, राइट? वी वुड सॉल्व डायरेक्टली द क्वेश्चंस, फाइन, एंड वी विल अप्लाई ऑल द लॉजिक्स। ओके, and I'm going to train you every single logic with the help of 25 to 50 MCQs, original UPSC PYQs, okay, to prove all the logics and to train your mind. Got it? Yes. But here is a condition. If you apply all these logics in test series, in market test series, then they won't work, because market test series are not matching the level of UPSC. Got it? They are matching the amount in their bank account. Got it? They have to take more and more admissions by creating a fearful market, a fearful ecosystem. Got it? So वहां पे आपके लॉजिक अप्लाई नहीं होंगे, आपके लॉजिक अप्लाई होंगे यूपीएससी की 45 years PYQs में। Is that clear to you? So that is all from my side. If you have any question, please let me know. Anybody? Any doubt? Okay, all right then. We are okay. So how do you know about the anthropology? एंथ्रोपोलॉजी का टारगेट्स हमने 30 डेज का बनाई, आपको कैसे पता चला शिवम? तब आप ही ने तो बोला है। अच्छा, मैंने बोला था अभी, ठीक है, कोई हाँ बात नहीं। सो वी आर कमिंग विद एवरीथिंग, ओके। जो भी हमारे पास ऑप्शन अभी अवेलेबल है, जिनमें हम कर सकते हैं, गॉट इट? जिसमें हम नहीं कर सकते उसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे प्लान को आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी ऑप्शन हो आपका, यू कैन फॉलो आवर प्रोग्राम। ओके, तो आई विल शेयर द फर्स्ट 2 PDF ऑफ द पेड कोर्स फॉर द अदर बैचेस, राइट? यू सिंपली फॉलो दैट थिंग। वहां पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर किया हुआ है, बस आप उसको अप्लाई कर दो। इफ यू आर एबल टू अप्लाई बाय योरसेल्फ, दैट वुड बी सुपर ऑसम। And अगर लगता है कि if you need some sort of mentorship, okay, our guidance, then we are here to serve you, we are here to help you. Okay, yeah, all right, then we are beginning the next class in 5 minutes, everybody. In 5 minutes we are beginning. Okay, thank you so much. God bless. Thank you.